This year's tournament features a strong lineup with 8 men and 8 women team participating. Today, the match will be clashes between the team Upper Siang and Ngorlung Ralung East Siang, promising an exciting start to the competition. Once again, welcome to Eastern Post. This is your reporter, Miss Kuritata. Second edition of late Tapurgao Memorial Football Tournament has kicked off at Pasighat Outdoor Stadium, organized by District Football Association under the aegis of Arunachal Pradesh Football Association. Today, the inaugural ceremony is graced as a chief guest by Honorable Minister Ojingta Singh and as a guest of honor Sri Tapudarang, the Honorable MLA of East Siang District. So, be with us to witness the full match. Late Tapurgao was the father of Honorable MP East Tapurgao and also the pioneer who brought education to their village. After Indo-China War, he became the Gaubura of their village. So this was the brief history of late Tapurgao. Stadium Singolo second edition at Dibodak. First edition menying Ruksin Belo Budipoto. Naminama Silo Him tournament ay pekalik talik kapemana mole log ngoluk spectator geding nolong takama ngoluk DP tim sai log airu pe ape se menge dola silok opening match so footballam ay pekalik bilang kam langor agumdung delo ordo delo kana me मोगे डीसी बाई किदिंग 70-80% तका में लंकाई लोंगडिंग लोग के कम कादो तिराप के सांगलांग के आंजो नामसाई देलोक के वेस्यांग लोग के अक्वानी काकाई रिसीव ना किदिंग देख बाकी बात तकाम दे कुरुंग कुमे करादादी papum pare aru east coming, west coming and Tawang. Moluk adi de pura totally zero. De ilango him, de lage ani pange la hupak him sports him holo, football him introduce itu, volleyball him kom kelie, molu all kind of games. Oh, participating team takam request dong, lolo kelie me lokom. Sportmen ispiram gom to la kelito ka dalok ke helok ke holok omet team am kom au team ke dalam kom mo
nolong takam best wishes bidola big lifelong. Most importantly, bega itu bom nama education. Bega education yang bazaru emphasis itu ila beg ekolog ila di ekolog di ila beg awe hupak taperga ngolum kalau MP ila adiam amen ga bola 3 times ke MP bola beg jaga potongku ina me ngo lekoda tim ome timem ko ngo tim kedaram lekoda ngo ai penolu to bohlang kam lokodo lang agong loria Yung pahit nam लगा kom sports ही main event idung important नहीं दूं no अधिक को sports के लिए तो हम ये विश्वास को कर दूं और लूदूं sports के लिए ना के लिए काय no discipline काय no determination काय no patience काय dapat तो mamang no teamwork kala society lo kom no maine kom open up ye aru no amiem kom connect lai ami patom mang no community kom connect lai kato ka hilo kom hola football tournament tuna match tuna kidin kom kato ka deka deka amu amu lok adu pe apar siang ke rayang ngorung kari khiye ngorung ke injong kari khida dailang kom society lo connect idung community connect idung inam laga ngolu hok trum kom ila ngolu modi ji ka lunam ek bharat shrestha bharat hol kom kadu bhi kom connect tu ina ngolu kapati ila 2024 alo विकसित भारत ये तो सर आपने जो है ये ले तापोर गांव मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट को जो है पासीघाट में ऑर्गेनाइज किया गया है तो एज ए चीफ पेट्रन आप थोड़ा सा आपका पापा का बारे हिस्ट्री थोड़ा सा आप ब्रीफ बता देगा व्यूअर्स को। ऐसा है, मेरा पिताजी तापोर गांव मोलम बस्ती अभी सियांग डिस्ट्रिक्ट का गांव बुरा था, लेकिन वो 1976 में देहांत हुआ। उसका मैं आई एम द सन ऑफ तापोर गांव, तो इसलिए उसका लाइफ में मेरा पिताजी और मोलम बस्ती का जितना उस ज़माने में लीडर बोलता था, माने बिलो गांव, तो लीडर एंड गांव लोग मिलके हम लोग को ज़बरदस्ती स्कूल भेजता था। तो उसका लाइफ में एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक इशू था। केवल मेरा पिताजी नहीं है, गांव का सारा गांव पूरा सारा सब गांव का सारा बच्चों को स्कूल भेजता था। लेकिन उस ज़माने में लड़की का एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन बाद में गर्ल्स एजुकेशंस को भी इम्पोर्टेंट देके गांव में टीचर्स का साथ कोऑपरेशन, स्टूडेंट्स को स्कूल में भेजना, ये सोशल एक्टिविटीज़ इन लोग का ग्रुप करता था। इसलिए उस ज़माने से हम लोग एजुकेशंस को इम्पोर्टेंस दिया। तो अभी पढ़ाई लिखाई में अकेला नहीं है, बहुत लोग अपना गांव से बहुत लोग स्कूल्स में जाके पढ़ाई लिखाई मैंने इम्पोर्टेंस दिया। ये उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। लेकिन यंग एज में ही जब मैं क्लास 6 में था, 76 में मेरा पिताजी का बीमार का वजह से वो देहांत हो गया। तो इसलिए उसका मेमोरी में मैं ये फुटबॉल टूर्नामेंट सेकेंड एडिशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट एडिशन रुकसिन में हुआ, इसलिए ये कर रहा हूँ कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गेम्स एंड स्पोर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है। लेकिन कुरुंकुमे, करादादी, पपुम पारे और ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, तवांग और लोंगडिंग, तिराप, सांगलांग, सारा जगह में वेस्ट सियांग को लेके बहुत स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस दे रहा है। और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करके कर रहा है। लेकिन हमारा अनडिवाइडेड सियांग इंक्लूडिंग लोअर सियांग गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे बहुत पीछे है। लास्ट टाइम सीएम साहब ने अनाउंस किया है कि गेजेटेड पोस्ट में गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोटा में 5% रिजर्व किया स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल में, और नॉन गेजेटेड में 10% है। तो इसलिए यहाँ हमारा अनडिवाइडेड सियांग
जैसे सियोमी, वेस्ट सियांग, लेपारादा, लोअर सियांग और आपका हमारा अपर सियांग, सियांग डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट सियांग एंड लोअर दिबांग वैली को मैं इसलिए इम्पोर्टेंस इस बार दिया हूँ कि हमारा यहाँ यूथ गेम्स एंड स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस दे। और जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो लड़का या लड़की इम्पोर्टेंस दे के खेल कूद में भाग लेता है, दे आर वेरी डिसिप्लिन इन द सोसाइटी। लास्ट टाइम केवल बॉयज़ का ही फुटबॉल मैच टूर्नामेंट फर्स्ट एडिशन में तापरगांव मेमोरियल टूर्नामेंट में किया था, लेकिन इस बार मैंने गर्ल्स फुटबॉल का भी इंट्रोड्यूस किया। और इस गेम ओवर होने का बाद वॉलीबॉल का भी बॉयज़ एंड गर्ल्स मैंने इंट्रोड्यूस किया हूँ। ये फुटबॉल टूर्नामेंट खत्म होते ही वॉलीबॉल का टूर्नामेंट भी बॉयज़ एंड गर्ल्स का होगा। तो केवल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल नहीं है, हमारा जितना स्पोर्ट्स इवेंट है इसको हमारा सियांग अनडिवाइडेड बेल्ट में इम्पोर्टेंस देके हमारा बच्चा आगे बढ़े। और स्पेशली यूथ के लिए मैं इस चीज़ को इम्पोर्टेंस इसलिए दिया हूँ कि हमारा ये सियांग अनडिवाइडेड सियांग बेल्ट जो है ड्रग्स एडिक्ट्स का बहुत अफेक्टेड एरिया है। अगर यूथ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगा तो ड्रग्स का भी मिनिमाइज हो जाएगा। दे विल बी द एम्बेसडर फॉर एंटी ड्रग्स। तो इसलिए मैं इसका इम्पोर्टेंस के लिए मैं इसको इंट्रोड्यूस करके पब्लिक भी पार्टिसिपेट हो रहा है, अच्छा है। और फ्यूचर में भी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सर, जितने भी यंग प्लेयर्स अभी इधर में खेल रहे हैं, बहुत मेरिट वुमेन, और जितने भी आपके यहाँ में कमेटी है ये तापरगांव मेमोरियल में, उन लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं स्पेशली ये डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ईस्ट सियांग को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ और कमेटी को भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। दे आर वेरी डिसिप्लिन और दे आर रेडी टू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ गेम एट पासीघाट, स्पेशली इन दिस स्टेडियम। और फ्यूचर में भी हम लोग बाकी इवेंट को भी हम लोग ले लेंगे। अभी फुटबॉल वॉलीबॉल में सीमित है, तो इसका बाद हम लोग देखेंगे कि रनिंग का भी, हाई जंप का भी, लॉन्ग जंप का भी, बैडमिंटन यहाँ तो खेलते रहता है, और टेबल टेनिस, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहता है। ये दिस इज ए बिगिनिंग। और मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी को भी और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा रेफरी, जजेस और कमिटी भी बहुत अच्छा है। तो इसको कंटिन्यू करने के बाद हम लोग और कंटिन्यू करेंगे बाकी इवेंट को। और सर लास्ट क्वेश्चन, आपने ये टूर्नामेंट को किस वो तक आपने क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया है, ये टूर्नामेंट को, फुटबॉल टूर्नामेंट को लेके आपका पापा के नाम से, और आप क्या मतलब क्या सोच के जो है इसको आप शुरू किया? आप देखिए, मैंने पहले से भी बताया, ये तापरगांव फुटबॉल मेमोरियल एक बहाना है। ये तो मेरा पिताजी का नाम से मैं इसका इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बहाना है। आई वांट टू मेक द यूथ ऑफ ऑल दिस अनडिवाइडेड सियांग्स volatile फॉर द स्पोर्ट्स। दे शुड मेड फॉर द स्पोर्ट्स। एंड हमारा गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू ऑनरेबल CM, ही इज सो गिविंग इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट्स। अभी आप देखिए, जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इंक्लूडिंग प्रा गेम्स में सारा सबको कैश मनी डिस्ट्रीब्यूट करता है एवरी ईयर। तो इस बार मैं भी उस फंक्शन में था, लेकिन हमारा सियांग बेल से 0 था। इसके लिए हमको बहुत दुख लगा। तो इसलिए वी शुड मेक यूथ वोलेटाइल फॉर द स्पोर्ट्स। इन लोग को पागलपन हम लोग दिखाना होगा, एंड दे शुड ज्वाइन। एंड दिस टाइम वी मेड इट एज एन डिस्ट्रिक्ट इवेंट। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्लब इवेंट में करेंगे, तो उसमें और यूथ लोग इन्वॉल्व होगा। ये पासीघाट में फर्स्ट टाइम है, सेकेंड एडिशन को, और आगे हम लोग लेके जाएंगे। और स्पेशली मीडिया टीम को भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आप लोग इसका कवरेज दीजिए, आपका चैनल में, आपका कहीं भी जहाँ अप्रोप्रिएट है,
लेट यू रियलाइज, अरे हम लोग भी देखना है, हम लोग भी इसको इन्वॉल्व होना है और हम लोग भी इसका पार्टिसिपेशन होना है। इसका इम्पोर्टेंस मीडिया का तरह ही जनरेट होगा एंड इन गौर गौर में देख के कहानी दोहराएंगे। जैसे आज इनाग्रेशन डे है, सेकेंड डे में, थर्ड डे में, अभी कल लेडी गर्ल्स का फुटबॉल है, 8 टीम है। तो मैं मीडिया टीम को भी कहूँगा आप स्पेशली गर्ल्स फुटबॉल को कवरेज दीजिए और लेट अदर गर्ल्स ऑफ आवर अनडिवाइडेड सियांग रियलाइज कि तपरगांव फुटबॉल मेमोरियल में गर्ल्स का भी इवेंट है, उसको फ्यूचर में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये मैसेज आप लोग का तरफ भी दे देना। इसलिए मैं आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू मीडिया टीम ऑफ पासीघाट एरिया। इसको आप आगे बढ़ाइए। ये तो हमको तो बहुत ही अच्छा लगा है और मैं ऑर्गेनाइजिंग जो कमिटी है ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के फुटबॉल एसोसिएशन का ये तो सेक्रेटरी है, उन लोग ने हमको यहाँ में गेस्ट ऑनर के तौर पे बुलाया है। मैं उन लोग को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये सेकेंड एडिशन जो तपरगांव टूर्नामेंट जो अभी चल रहा है, ये 11 साल में उधर में रुकसिन में ऑर्गेनाइज किया था। उसी टाइम में ये हम एमपी साहब को जो तपरगांव जो इसका तपरगांव का बेहता है उसको मैं रिक्वेस्ट किया था, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, इसको ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में पासीघाट में ऑर्गेनाइज करने से ठीक है बल्कि रिक्वेस्ट किया था। तो इस साल वो यहाँ में ऑर्गेनाइज कर रहा है और मैं पासीघाट और मेरा तरफ से भी उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। उसने यहाँ में ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और आज इस साल का तो टूर्नामेंट इंक्लूडिंग ये बॉयज़ एंड गर्ल्स का है, जो गर्ल्स का शायद ये फर्स्ट टाइम होगा ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो इतना बड़ा ये टूर्नामेंट में ये बेटी लोग को पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं। और मैं चाहता है कि ये जो टूर्नामेंट है ये शायद हम लोग का प्लेयर्स के लिए अच्छा उन लोग का ये कैपेसिटी दिखाने का भी होगा और ये उन लोग का फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग का अभी का जो गवर्नमेंट है ये हम लोग का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जो यंग है और ये उसका लीडरशिप में शायद हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स में 3rd पोजीशन में है। और मैं चाहता है ये सब खेल में अच्छा करके हम लोग का ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से भी अच्छा प्लेयर निकले और ये स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में खेले। और मेरा ऑर्गेनाइजर से स्पेशली ये डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से ये सेक्रेटरी साहब तो हमारे साथ में है, उन लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता है अभी जो भी लोकल टूर्नामेंट होगा कोई टूर्नामेंट को अंडर 16 ये ऑर्गेनाइज कराने से ठीक है, क्योंकि अंडर 16 होने से हम लोग का फ्यूचर का जो प्लेयर्स होगा उसको ये अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा और फ्यूचर के लिए हम लोग का डिस्ट्रिक्ट स्लिप नहीं स्टेट के लिए भी अच्छा शायद प्लेयर निकलेगा होगा। और ये इस बार भी हम लोग का यहाँ में हांगपन दादा जो अंडर 16 टूर्नामेंट हुआ था उसमें ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट उन लोग का बदौलत बॉयज़ एंड गर्ल्स में चैम्पियन बना है। इसलिए ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ये फुटबॉल को लेके बहुत सीरियस है और मैं उन लोग से भी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करना चाहता है हो सके तो अच्छा सा यहाँ में कोच ला के जो इंटरेस्टेड अंडर 16 प्लेयर्स हैं उन लोग को अच्छा ट्रेनिंग देने से शायद यहाँ से बहुत ही अच्छा प्लेयर्स भी निकलेगा होगा। और सर आजकल के बच्चे लोग जो है ज़्यादातर जो बॉडी नहीं हिलते हैं, हाथ में गेम खेल के और बच्चे लोग जो है ड्रग्स में एडिक्शन होता है। तो जितने भी इधर में प्लेयर्स है और जितने भी स्पोर्ट्स लवर है उन लोगों के मुताबिक आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो वही रिक्वेस्ट है जो अनप्रिस्क्राइब जो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब नहीं वाला ड्रग्स लोग को नहीं लेने चाहिए। और ये आप लोग भी मालूम होगा ये अरुणाचल प्रदेश में हम लोग का यहाँ में HIV एड्स का जो परसेंटेज है हम लोग का अरुणाचल में 3rd पोजीशन में ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। और एक बार ये HIV लगने के बाद तो शायद ये बीमार को ठीक नहीं कर सकेगा, उसको प्रोलॉन्ग कर सकता है। लेकिन HIV से एड्स हो जाने से तो शायद उसको
ये टाइम भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैं ये यांग जितना भी यहाँ में ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का सलीम ने अरुणाचल का पूरा ये ड्रग्स को अवॉइड करने से सीखे। और कोई कोई तो ऐसे ये आउट ऑफ ये टेस्टिंग के लिए उन लोग टेस्ट करता है और ये आदत लग जाते हैं करते करते। और मैंने तो सुना है शायद ये ड्रग्स लेने से जितना आप कोई चीज़ को मिल के, जैसे आप एग्ज़ाम में टॉपर हुआ, वो जितना खुशी मिलता है ड्रग्स लेने से उससे 1000 टाइम मतलब आदमी खुशी होता है। मतलब एक बार लगने के बाद तो शायद उसको पीछा छुटाना बहुत ही तकलीफ होगा। और एक घर में एक बेटा बेटी ड्रग्स एडिक्टेड होने से ये पूरा घर के लिए बहुत ही दुखद की बात है, क्योंकि ये फाइनेंशियली उसमें इन्वॉल्व है और फाइनेंशियली नहीं होने से उसको तो ड्रग्स तो लेना है, वो करके चोरी डकैती और कुछ खराब चीज़ भी हो जाता है ना। फिलहाल अभी तो इतना स्ट्रगल फेस नहीं किया है, क्योंकि ये अभी हम लोग का सेकेंड एडिशन है। तो इस लास्ट एडिशन उन्होंने ये जो ऑनर है हम ऑनरेबल एमपी साहब उन्होंने वो रुकसिन में किया था। तो इस बार सेकेंड एडिशन को हम लोग को DAP एशियन को दिया हुआ है। तो अभी तक ऐसा कुछ स्ट्रगल तो नहीं आया है, बट थोड़ा सा हम लोग प्रिपरेशन में ऐसा थोड़ा सा हम लोग लास्ट 10 to 15 डेज से ये हम लोग स्टेडियम को सफाई ये अभी बैनर्स वगैरह इसमें थोड़ा सा हम लोग मेहनत किया है। और सर जितने भी आप लोग का टीम मेंबर्स है आपका कमेटी का साइड में, और जितने भी यहाँ में यंग प्लेयर्स स्पोर्ट्स लवर है, उन लोगों को आपका तरफ से क्या बोलना चाहेगा? यहाँ में मेरा टीम्स तो सब लोग हम लोग मिल के ही अभी काम कर रहे हैं। एज ए DAP टीम सब मिल के ही हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग और ये टूर्नामेंट को हम लोग सक्सेस कराने के लिए कोशिश करेंगे। और ये रिगार्डिंग जो टीम जो प्लेयर है जो यंग प्लेयर है, तो मैं एज ए DAP प्रेसिडेंट जो यंग प्लेयर है जो है वो अच्छा से खेलना है, तो डिसिप्लिन के साथ खेलना है। और ये टूर्नामेंट भी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट अभी हो गया। तो इसमें टूर्नामेंट खेलने के लिए आप मन से खेलना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ नहीं, आप ये टूर्नामेंट से होने से अभी हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट टीम का सिलेक्शन होगा ये टूर्नामेंट में। तो आगे जाके हम लोग अभी एक स्टेट लेवल हम लोग एक टूर्नामेंट होता था तादारतंग टूर्नामेंट। तो हम लोग यही से हम लोग अभी जो प्लेयर है हम लोग अभी देखते हैं। हम लोग ईस्ट सियांग टीम है, लेकिन देखते हैं कौन सा अभी माने प्लेयर अच्छे होंगे, हम उसका हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। और सर ये सेकेंड एडिशन चल रहा है ना ये टूर्नामेंट का, तो आप लोग जो है इसको किस हद तक लेके जाना चाहोगे? हाँ, ये सेकेंड एडिशन तो हम लोग ने लिया है। अभी तो थर्ड एडिशन तो वो तो अभी हम लोग का जो ऑनर है ही बोल पाएगा। अगर हम लोग ये सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज अगर करने से वो भी शायद हम लोग को नेक्स्ट थर्ड एडिशन भी शायद हम लोग को ऑर्गेनाइज करने के लिए शायद देगा होगा। तो अभी फिलहाल इसी के लिए हम लोग भी लगा हुआ है, ताकि ये टूर्नामेंट एक सक्सेसफुल हो जाए, वही हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं। Finally, today's first match has been concluded between the team Upper Siang and Ngorlung Ralung East Siang. And also the team outcome has come out as a draw. And we will come with such kind of more interesting content. Once again, this is your reporter Miss Kuritata with camera person Ralduk Moyong, Eastern Post.